class. Today we are going to start illustration number 1. Illustration number 1. Chapter is journal. First, prepare the format. Date, particular, ledger folio, debit, rupees, credit, rupees. Make the format first. Then after January 1, C.R. Ram and Sons started business with cash. C.R. Ram and Sons started मतलब capital. C.R. Ram and Sons started business with cash. Cash आ रहा है किस रूप में? कैपिटल के रूप में. 1 जनवरी कैश अकाउंट डेबिट टू capital account. Amount is given 50,000. Started business with cash. Underline this. This is your first transaction. Second, purchase goods for cash. Purchase goods. तो purchase account debit for cash. Cash गया तो to cash account. Purchase account debit to cash account. Amount is given to you 20,000. Right here 20,000 and 20,000. 2 January. Narration will be purchased goods for cash. Underline this. Is it clear? Now the third one is purchase goods from Subhash. Purchase goods. Purchase account debit हो गया. From Subhash. Name is given. तो आप 2 में लिखेंगे name. Then entry will be purchase account debit to Subhash. Amount is given to you 12,000. Write down the narration. Purchased from Subhash. क्या रुक चुकी है? Purchased from Subhash. The date is given 4 January. Next is purchase furniture for cash. The date is given 5 January. Purchase furniture. Furniture account debit. Furniture account debit to cash account. Narration will be furniture purchased. Amount is given to you 6,000. Clear? Now the next transaction. Paid cash to Subhash. Next is given to you paid cash to Subhash. Cash गया तो 2 में. To cash account. किसके पास गया? Subhash. Subhash is the receiver. So Subhash debited. नेम के साथ कभी भी अकाउंट नहीं आता. क्लियर? अमाउंट इज
8,000. Clear? Next transaction is purchased goods from Ravi for cash. परचेज प्लस गुड्स आ गया तो परचेज अकाउंट डेबिट. रवि और कैश, रवि भी है और कैश भी है, तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे कैश को. टू कैश अकाउंट. अमाउंट इज 7,500. जल्दी से 7,500. What machinery for cash? What machinery for cash? What comes to you? मशीनरी क्या जा रहा है? कैश. जो चीज़ आ रही है वो डेबिट, जो चीज़ जा रही है वो क्रेडिट. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. अमाउंट इज गिवन टू यू 8,000. Clear? The next question is paid rent. Paid rent. रेंट क्या है आपका? खर्चा. खर्चे क्या होते हैं? डेबिट. रेंट क्या है आपका? खर्चा. खर्चा होगा डेबिट. तो खर्चे का नाम रेंट. रेंट अकाउंट डेबिट. पेड, पे कर दिया, चला गया, क्या गया नहीं पता, तो हम क्या मानेंगे? कैश. टू कैश अकाउंट. अमाउंट इज गिवन टू यू 400. First question is completed. Now I am going to start illustration number 2. Illustration number 2. Sold goods for cash. Sold goods for cash. Sold goods for cash 13,000. Sold plus goods मतलब सेल्स अकाउंट. सेल के रूप में आपका माल जा रहा है तो सेल का क्रेडिट बैलेंस. सेल करने से आपके पास कैश आ रहा है तो डेबिट बैलेंस. एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने. डेबिट वर्ड काम से क्रेडिट वर्ड गोज आउट. सेल सोल्ड प्लस गुड्स का मतलब सेल. सेल के रूप में माल जा रहा है. जा रहा है तो क्रेडिट, बदले में कैश आ रहा है तो डेबिट. 13,000. क्लियर? सेकेंड, सोल्ड गुड्स टू महेश. सोल्ड गुड्स टू महेश. सोल्ड गुड्स तो इसके लिए बना सेल्स अकाउंट. जा रहा है 2 में आएगा. टू सेल्स अकाउंट. कहाँ जा रहा है? महेश. डेबिट. कौन खरीद रहा है? महेश. तो महेश विल बी डेबिटेड. नेम के साथ कभी भी अकाउंट नहीं आएगा. थर्ड, रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश. अमाउंट इज गिवन 15,000. Received cash from
महेश। क्या रिसीव किया आपने? कैश। कैश आ रहा है किसके पास से? महेश से। तो जो चीज आ रही है उसे डेबिट करोगे, कैश अकाउंट डेबिट। किससे आ रहा है? महेश से। तो टू महेश। अमाउंट इज गिवन टू यू 12,000. Amount is given to you 12,000. Is it clear? Next is sold goods to Suresh for cash. Sold goods to Suresh for cash. Sold goods आ गया तो मतलब टू सेल्स अकाउंट। नेम और कैश टू आइटम्स आ गए तो आपने प्रायोरिटी किसको देनी है? कैश को। कैश अकाउंट डेबिट। इज इट क्लियर? नेम प्लस कैश दोनों गिवन हो then you are to consider only cash. Cash account debit to sales account. Amount is given to you 12,600. 12,600. Is it clear? Then the next one is sold goods to Suresh. Sold goods to Suresh. Sold plus goods आ गया। सोल्ड प्लस गुड्स मतलब टू सेल्स अकाउंट। किसको बेचा? सुरेश। नेम आ गया, या तो ऊपर कैश आएगा या बैंक आएगा या नेम आएगा। तो अब यहाँ नेम आ गया सुरेश डेबिट। नेम के साथ अकाउंट नहीं आता। अमाउंट इज गिवन 7,000। मैं आपको ऐसे डिक्टेट कर रही हूँ, लेकिन जब आप अपनी कॉपी में वर्कआउट करोगे तो बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में करोगे। इसीलिए पहली 4-5 एंट्रीज मैंने फॉर्मेट में की विद नरेशन, तो आप भी फॉर्मेट में प्लस नरेशन में करोगे। क्लियर? नेक्स्ट, विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस। विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस for personal use. पर्सनल यूज आते ही समझ जाओ ड्राइंग। डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डेबिट। तो इसका बैलेंस हो गया ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। अच्छे से लर्न करो। डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डेबिट। पर्सनल यूज आते ही आपका क्या बन गया? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट क्या गया? कैश। तो टू कैश अकाउंट। अमाउंट इज गिवन टू यू 2,500. Amount is given to you 2,500. Next, paid wages. Paid wages. Wages क्या है आपका? खर्चा। खर्चे क्या होते हैं? डेबिट। खर्चे का नाम वेजेस। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों लिखा कैश? पे कर दिया आपने। पेड। अमाउंट इज गिवन, मिल रहा है बेटा 450। अमाउंट इज 450। नेक्स्ट, पेड सैलरी टू गोपाल। पेड सैलरी टू गोपाल। क्या पे करी आपने? सैलरी। सैलरी क्या है? खर्चा। खर्चा क्या होता है? डेबिट। तो खर्चे को आप डेबिट करोगे, सैलरी अकाउंट डेबिट। पे कर दिया तो टू कैश अकाउंट। सॉरी,
1200. The last is received commission. Received commission. आप रिसीव कर रहे हो, जब आप पे कर रहे थे तो हम बोल रहे हैं कि ये खर्चा है, जब हम इसको रिसीव करेंगे तो ये इनकम है, और इनकम का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, और कमीशन का नाम क्या है? कमीशन. तो टू कमीशन अकाउंट. रिसीव, क्या रिसीव हो रहा है? कुछ नहीं पता तो हम क्या मानेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट. अमाउंट डालोगे इसका 200. क्लियर? अब मैंने क्वेश्चन किया फर्स्ट और सेकंड, तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट करोगे कॉपी पर. इज इट क्लियर?